नहीं, किससे, कौन सी दुकान से? हेलो हेलो हिमांशी, हेलो हेलो। Yes, sir. स्लाइड विजिबल है? स्लाइड Yes, sir. Well, ऑडिबल? ओके। मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्शन पावर। The link between the brake power output and indicated power output of the engine is friction power. What is the friction power? Friction power equal to indicated power minus brake power. It's called friction power. Friction has a dominating effect on the performance of an engine. Almost invariably, the difference between a good engine and bad engine is due to difference between their frictional losses. If the friction losses are ultimately dissipated to the cooling system and exhaust, as they appear in the form of frictional heat, and this influences the cooling capacity requirement. The lower friction means availability of more power. If the friction power is less, means IP minus BP is less, means BP is high, because BP is again IP minus friction power. If friction power is less, means brake power is high. Hence, brake specific fuel consumption is lower. Lower means availability of more brake power, hence brake specific fuel consumption is lower. If power is high, then fuel consumption is low. This fuel economy is important because it decides the speed at which an engine can be run economically. If brake power is high, means brake specific fuel consumption is lower, then it is economically. The BSFC rises with an increase in speed. At some speed, it renders the use of engine prohibition. Thus, the level of friction decides the maximum output of the engine can be obtained economically. For reasons outlined above, in the design and testing of engine, measurement of friction power is important for getting an insight into the method by which the output of an engine can be increased. In the evaluation of indicated power and mechanical efficiency, measured friction power is also used. The friction power of an engine is determined by the following method. First, Williams line method. Second, Moore's test. Third, motoring. And fourth one is difference between indicated power and brake power. First, Williams line method. Williams line method, channel rate extrapolation. In this method, gross fuel consumption versus brake power at constant speed is plotted, and the graph is extrapolated back
to zero fuel consumption. The point where this graph cuts the brake power axis is an indication of the friction power. And this is a graph. Engine torque means fuel flow rate. This is the fuel flow rate and this is brake power. At this point, brake power is 0, but fuel flow rate have some amount, some fuel is there. And at this point, the brake power is 10 and fuel flow rate 0.2. And this point, the brake power is around 47 and the fuel flow rate is 0.5. Then this graph is drawn. If we draw a line from the same slope, this graph to this point, then it cuts in negative direction. And this shows the friction torque. If it's -2, means this is friction torque. This negative work represents the combined loss due to mechanical friction, pumping and blow-by. The test is applicable only to compression ignition engine, yani diesel engine, only diesel engine. The main drawback of this method is the long distance to be extrapolated from the data measured between 5 and 40% load towards the zero line of fuel input. The directional margin of error is rather wide because the graph is not a straight line. The changing slope along the curve indicates part efficiency of increments of the fuel. The pronounced change in the slope of this line near fuel load reflect the limiting influence of the air-fuel ratio and of the quality of combustion. Similarly, there is a slight curvature at light loads. This is perhaps due to the difficulty in the injecting accuracy and consistency, very small quantities of fuel per cycle. Therefore, it is essential that great care should be taken in extrapolating the line, and as many as reading as possible should be taken. If there are more reading, then we can draw line as per the slope. If the reading is this point, if reading is there, then it can be drawn this one. So we have to draw as per the reading. The Williams line swilled chamber CI engine is more straight than that of the direct injection type engine. The accuracy obtained in this method is good and compare favorably with other method is extrapolation carefully done. Next, Morse method. In this method, Morse test, which is applicable only multi-cylinder engines, means engine have more than one cylinder. The engine is first run at the required speed and the output is measured. Then one cylinder is cut out by short circulating the spark plug or by disconnecting the injector, as the case may be. multi-cylinder है, 1 cylinder, 2 cylinder, 3, 4, सपोज 4 cylinder है ना, तो आउटपुट चारों का मिल रहा है अपन को 4 cylinders का. इसमें भी
स्पार्क प्लग है और इंजेक्टर है. स्पार्क प्लग इन द केस ऑफ SI इंजन और इन द केस ऑफ CI इंजन इंजेक्टर. ठीक है. अगर SI इंजन में लेंगे तो अपन एक का स्पार्क प्लग ऑफ कर देंगे, इसका ऑफ कर दिया तो पहले तो इन चारों से पावर मिल रही थी, अब इन तीनों से पावर मिलेगी. 1 2 3, इससे पावर नहीं मिलेगी. तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, सबसे पावर मिल रही थी तो अपन ने वो पावर मेजर कर ली, है ना, वो पावर अपने पास आ गई P. अब इसका स्पार्क प्लग अपन ने हटा दिया तो अब तीनों से पावर मिलेगी, वो पावर अपन मेजर कर लेंगे P2. ठीक है, ये P2 होगा, ये P1 हो गया. SI के केस में अपन स्पार्क प्लग हटाएंगे और CI के केस में इंजेक्टर. ठीक है, तो P1 माइनस P2 निकालेंगे तो इसकी इंडिकेटेड पावर आ जाएगी. ठीक है, जिस सिलेंडर को अपन ने स्पार्क प्लग हटाया या इंजेक्टर हटाया उसकी इंडिकेटेड पावर आ जाएगी P1 माइनस P2 से. Under this condition, all other cylinder motors, this cutout cylinder, the output is measured by keeping the speed constant at this original value. Speed अपन को constant रखनी है, change नहीं करनी है. The difference in the output is a measure of the indicated power of the cutout cylinder. Means फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सिलेंडर है सपोज, अपन ने इसको कट कर दिया. ठीक है, फर्स्ट में तो अपन ने 6 का मेजर कर दिया, इन 6 का, है ना, इसको कट कर दिया तो 5 का मेजर हो जाएगा, है ना. तो जो पावर में डिफरेंस आएगा वो इसकी इंडिकेटेड पावर होगी जिसको अपन ने कट किया है. ठीक है, thus for each cylinder the IP is obtained. पहले इसको कट करेंगे तो इसकी इंडिकेटेड पावर डिफरेंस आ जाएगी, फिर इसको कट करेंगे, इसको चालू कर देंगे तो इसकी इंडिकेटेड पावर आ जाएगी, फिर इसको कट करेंगे तो इसकी आ जाएगी, फिर इसकी, इस तरह से अपन सभी की इंडिकेटेड पावर मेजर कर लेंगे. द इंडिकेटेड पावर ऑफ n सिलेंडर इज गिवन बाय IPN इक्वल टू BPN प्लस FP. ठीक है, IP फॉर n-1 सिलेंडर, IPN-1 क्या हो गया, BPN-1 प्लस FP. Since the engine is running at the same speed, it's quite reasonable to assume that FP remain constant. ये FP ये FP दोनों remain constant है, तो दोनों का डिफरेंस आएगा तो वो IP का डिफरेंस हो जाएगा. From the equation 18.26 और 18.17 और 18. See that IPN equal to BPN or BPN-1. And the total IP of the engine is IPN. फ्रिक्शन पावर सेम है तो क्या हुआ, इसमें से माइनस इसको करेंगे तो वही डिफरेंस आएगा जो IP का आएगा, है ना. फ्रिक्शन पावर तो कट जाएगी दोनों. ठीक है, बट by subtracting BPN from this, the FP of the engine can be obtained. है ना, IP से अपन FP माइनस करेंगे तो BP आ जाएगा और IP से अपन BP माइनस करेंगे तो FP आ जाएगा. This method though gives reasonably accurate result, liable to error due to the change in mixture distribution and other condition by cutting out one cylinder. In gasoline engine, there is a common manifold for 2 or more cylinders. The mixture distribution as well as the volumetric efficiency both changes. Again, almost all engines have the common exhaust manifold for all cylinder, and cutting out of one cylinder may be greatly affect the pulsation and exhaust system, which may significantly change the engine performance by imposing difference back pressures. इसमें न्यूमेरिकल अपन करते हैं, इस न्यूमेरिकल को नोट करो. मोड्स टेस्ट, हीट बैलेंस, ए 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन, इसको नोट करो. सिंगल सिलेंडर एक्टिंग सिलेंडर है इसमें,
7.5 सेंटीमीटर बोर है, 9 सेंटीमीटर स्ट्रोक है ना, नोट करो इसको। इंजन इज कपल्ड टू ए ब्रेक हैविंग टॉर्क आर्म रेडियस 38 सेंटीमीटर और 3300 revolution per minute with all cylinder operating. The next brake load is 3 to 4 Newton. When each cylinder is turned is rendered inoperative, the average net brake load produced at the same speed by the remaining 5 cylinder is 249 है ना। 324 से कितना हो गया 3242 249. Estimate the indicated mean effective pressure of the engine with all cylinders operating. The fuel consumption is given है, calorific value अपन को दे रखी है, water flow rate and temperature rise. ये water flow rate हो गया, temperature rise on test. Engine is enclosed in a thermally and acoustically insulated box through which the output drive water, fuel and air. इसको नोट करो। कितने पेज हैं 10 नहीं सर और 25 तक है जितना तो भरा लिखा था करोगे वाला भी था मेरा। दो लोगों का सेम है, उसका भी अभी आया था थोड़ी देर पहले, उसका भी सर मैंने तो मेरा ग्रुप में डाल दिया था सर पहले से। टेस्टिंग मेथड्स। हाँ सर कौन से लिखे इसमें तो गलत बनाई है सर। वो जो आया था सर उसके हिसाब से बनाई थी, वो सारे भेजे थे सर ने रूल्स और 1.5 की डिस्टेंस और ये 12। नहीं तो मैटर ही सही नहीं है इसमें, वो तो ठीक है तुम्हारा मैटर तो जो अवेलेबल कोरोजन टेस्टिंग है तुम्हारी, एक बार मेरे को व्हाट्सएप करना, ईमेल आईडी मैंने भेज दूंगा तुम्हें ना, उसके अकॉर्डिंग बनाओ ठीक है। तो सर ठीक है, फाइल ही गलत हो गई है तो उसको तो रख दो, देखते हैं सॉफ्ट कॉपी भेज देना, या हार्ड कॉपी में सबमिट हो जाएगी ठीक है। सर मेरे को तो ये सारा मैं तो रिसर्च पेपर में बनाया था सर सारा, तो तुमने नहीं देखा ढंग से। एग्जॉस्ट कनेक्शन पास वेंटिलेटिंग एयर blow by through the box at the rate of 14 kilogram per minute. Enter at 10 degree centigrade. Leave 55 degree centigrade. है ना, नोट कर लिया ये क्वेश्चन। हेलो प्रमोद, इंद्र कुमार, हेलो सर मेरा स्टीम का इंप्रूवमेंट भी रहा, स्टीम का इंप्रूवमेंट 6 है। अच्छा पेपर कब है? पेपर का तो अभी है ही ना कुछ, पेपर का तो कुछ आया नहीं ना सर, कब होने वाला है, कब होगा? अभी आया नहीं, आएगा तो बता, आएगा तो ना मिल लेना मेरे से ना, ठीक है। इसके एक बार भेजना, मैं तो डिटेल तो भेजी है, गलत सबमिट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बस मैं देख लो ना यार यूट्यूब में, सर मैंने यूट्यूब नहीं उसमें देखो,
हाँ यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब में देखो कोरोजन टेस्टिंग मेथड्स, आईआईटी की कोई भी डालो, उसमें पता लग जाएगा। हेलो, हाँ प्रीतम, हेलो, हिमांशी, हेलो। यस सर, नोट कर लिया क्वेश्चन। फर्स्ट है ब्रेक पावर, है ना। ब्रेक पावर क्या होती है? 2 पाई एन टी, है ना। सबके लिए अपन को क्या दे रखा है? 3 to 4 दे रखा है ना, से ब्रेक पावर आ जाएगी, निकालो उसे। एन कितना दिया हुआ अपन को? 324 लोड दे रखा है, ब्रेक लोड, है ना। और टॉर्क कितना दे रखा है? ये रेडियस है 38 सेंटीमीटर, है ना, है ना। तो ये ब्रेक पावर आ जाएगी 2 पाई एन टी से, है ना। सिग्नेचर की लिस्ट पूछो ना किसके पास है, ठीक है। रिवॉल्यूशन पर मिनट है तो अपन इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 3300 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, है ना, एन की वैल्यू। और टॉर्क लोड इनटू रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे, टॉर्क आ जाएगा। हेलो, हाँ इधर आ जाओ, कैट लैब में। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। ये ब्रेक पावर आ गया। ये किसकी ब्रेक पावर है? सारे ऑल सिलेंडर की। ये देखो ऑल सिलेंडर का दे रखा है लोड, है ना, 3 to 4। लोड इनटू रेडियस से करेंगे तो टॉर्क आ जाएगा ये। एन इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? रेडियस 38 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे अपन मीटर में कन्वर्ट करके, एक थोड़े 8-10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये ब्रेक पावर आ गई, है ना। ब्रेक पावर ऑफ इंजन व्हेन ईच सिलेंडर इज कट ऑफ, तो क्या आएगा ये? टू पाई 245 आ रहा है इसमें, है ना। अगर इंजन को कट ऑफ करते हैं तो अपन 5 सिलेंडर का, है ना, 5 सिलेंडर की निकालेंगे अपन, है ना? ये वैल्यू चेंज हो जाएगी 3 to 4 से 245, है ना। यहाँ 3 to 4 थी 6 सिलेंडर की, और ये 5 की कितनी हो गई? 3। तो कितना है? इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 42.55 माइनस 32.17, कितना आएगा? 10.38। तो ये इंडिकेटेड पावर आ गई एक सिलेंडर की, है ना। टोटल कितने हैं? 6 सिलेंडर, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की इंडिकेटेड पावर ये हो जाएगी, है ना। मैंने अज्यूम किया है सेम सिलेंडर है सबके, है ना। तो इंडिकेटेड पावर आ गई सेम। ये अपन को मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा? इंडिकेटेड पावर ऑफ अपॉन नंबर ऑफ सिलेंडर कितने? 6 और ALN, है ना। ए की वैल्यू π/4 d², इसमें डी अपन को दिया हुआ है 75। बोर अपन को दिया हुआ होगा, देखो इसमें, ये देखो 7.5 सेंटीमीटर बोर दे रखा है, डायमीटर हो गया। π/4 d² से एरिया आ जाएगा, एल की वैल्यू और एन। एन अपन को गिवन है 3300 पर मिनट है, तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और एल गिवन है अपन को
9 सेंटीमीटर स्ट्रोक, है ना। तो ये एल की वैल्यू आ गई। तो अपन इससे इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालेंगे। कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है। हाँ हिमांशी, हेलो हेलो। हिमांशी, हेलो सर हेलो। निकाल रही हूँ। हाँ, कैलकुलेशन कर रही हूँ सर अभी। पॉइंट 5 बार आएगा। हीट इनपुट टू इंजन, टोटल हीट इनपुट निकालेंगे फिर अपन टू इंजन। कैलोरीफिक वैल्यू और मास ऑफ फ्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो हीट इनपुट टू इंजन आ जाएगा ये, है ना। फ्यूल पावर 100% हो गया ये, जो अपन ने फ्यूल से पावर दी, है ना। ये अपन को गिवन है, और ये कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। अपन निकालेंगे हीट इक्विवेलेंट टू ब्रेक पावर, ठीक है। अब किलोजूल पर मिनट में निकाला है ये, तो अपन ये भी अपन किलोजूल पर मिनट में निकालेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये तो पर सेकंड में निकला हुआ है पावर, ब्रेक पावर, है ना। तो ब्रेक पावर इंटू 60 करेंगे तो किलो जूल पर मिनट में आ जाएगा, है ना। हीट इक्विवेलेंट टू ब्रेक पावर, तो अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो 20.3% ब्रेक पावर में हीट कंज्यूम हुई। कूलिंग वाटर में निकालेंगे तो mcp dt। मास फ्लो रेट गिवन है, cp अपन को वाटर की पता है, और टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है 12 डिग्री, है ना। तो ये आ जाएगा। तो कूलिंग वाटर में कितनी हीट लॉस हुई, वो अपन इसका रेशियो निकालेंगे तो 25.9% है टोटल। हीट टू वेंटिलेटिंग एयर, ऐसे अपन वेंटिलेटिंग एयर के लिए निकालेंगे, और हीट टू एग्जॉस्ट एंड अदर लॉसेस, ठीक है। इसमें गिवन है देखो 55 डिग्री पे एंटर एग्जॉस्ट हो रही है ना। फ्लो रेट दे रखी है 40 किलोग्राम पर मिनट,
ठीक है, अगेन फ्लो रेट हो गई, सीपी एयर की गिवन है 1.005 और dt, ठीक है। अदर लॉसेस में अपन इसमें से ये माइनस कर देंगे तो अदर लॉसेस आ जाएंगे, 100 में से ये ऐड करके माइनस करेंगे तो ये अदर लॉसेस आ जाएंगे। हेलो, हाँ हिमांशी, हेलो, हिमांशी, हेलो, निकिता, हेलो, निकिता, हेलो, इंद्र कुमार, हेलो, तो काफी अच्छा है।